میں اپنی تقریر اس شعر پہ ختم کرتی ہوں. ہم کو اے خاک کی ذرات سمجھنے والوں, ہم کو اے خاک کی ذرات سمجھنے والوں, غور سے دیکھو ذرا شمس قمر ہیں ہم لوگ, وما علینا الا البلاغ. انصاری محمد سگن ہے میں بتا چگل کوری گناہ عظیم. سامعین اکرام, اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے. انسان پیدائشی طور پر سہل طبیعت اور نیک عادت کا پیکر ہوتا ہے. اعلیٰ اخلاق اور بلندیدہ اس کے زیور ہوتے ہیں, لیکن انسان اپنے سماج اور معاشرے سے متاثر ہو کر شیطان کے وسوسوں میں مبتلا ہو کر ایسی بہت ساری خرابیوں اور غلط عادتوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے جو اس کی شخصیت کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. انہی برائیوں میں سے غیبت اور چغلخوری بھی ہے. حاضرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کرے ورنہ خاموشی اختیار کرے. غیبت ایک گناؤنا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والوں کو اپنے رودابائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے. ارشاد ربانی ہے, تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے. لا یغتب بعضکم بعضا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چغلخور جنت میں نہیں جائے گا. حضرات گرامی, آج کل چغلخوری اور غیبت کا بہت زور ہے. کوئی شعبہ باقی نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس بیماری سے دور ہے. غیبت کرنے والوں کے دل میں ہمیشہ تاریکی ہوتی ہے. وہ بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے. اس کا دل بے نور ہو جاتا ہے. سامعین, غور و فکر کا مقام ہے کہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. گالی گلوچ, غیبت, چغلخوری, جھوٹ, بہتان اور طعنہ دینا یہ سب گناہ عظیم ہیں جن سے اپنی زبان کو بچانا چاہیے. غیبت اتنا غلیظ فعل ہے کہ غیبت کرنے والا قیامت کے روز مفلس ہوگا. اس کی نیکیاں چھین کر سامنے والوں کو دے دی جائے گی. غیبت کرنے والا معاشرے کی نگاہ میں گر جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ملعون ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو غیبت اور چغلخوری جیسی بدکردار عادتوں سے محفوظ رکھے. آمین. حاضرین, اس دعا کے بعد آؤ ہم عہد کریں, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. انشاءاللہ. خدا حافظ. مائک پر مومن زینب ریاض احمد, سیریل نمبر 38. اللہ کی سرکار کا قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن کا ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. صدر ذی وقار, اہل میزان اور سامعین اکرام, السلام علیکم. میرا موضوع سکھن ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی. ذات نسب میں سب سے عالی, حسب میں سب سے بدتر, جس کی سیرت ممتاز, ظلم و عدوان سے کوسوں دور, جن کی ذات مقدسہ ہمتن حق شناسی میں مصروف رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت در حقیقت ایک ذات یا ایک شخصیت کی سیرت نہیں, بلکہ پورے عالم انسانیت اور عالم بشریت کی ایک سیرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کاغدان گیدھی کے وجہ چمن میں بہار آئی. قلب اور روح کی توانائیوں کا چشمہ پھوٹا. فارات کے افق سے خورشید رسالت
को जला फैल गया। सलाम हो उस रूह मुक़द्दस पर जिसने दुनिया में मुस्लिम कौम को वजूद बख्शा और इसे खाक की बस्तियों से उठाकर अज़मतों और जिस्मों पर पहुंचा दिया। नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है। ये कहकशा तो आपके कदमों की धूल है, ये कहकशा तो आपके कदमों की धूल है। सामाइन इकराम, देखिए सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने गालियों के एवज में तमगे पेश किए, रास्तों में कांटे बिछाने का बदला फूल की शक्ल में दिया। खुदा ताला का इरशाद है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। वाक़या हिजरत को लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों को जुल्म सितर से तंग आकर मक्का से रुखसत होना चाहते हैं। घर के बाहर दुश्मन नंगी तलवार लिए खड़े हैं। कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। घर के अंदर लोगों की अमानतें वापसी का इंतजाम फरमा रहे हैं। ये अमानतें जिनकी उन्हीं कुफ्फार की अमानतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान दुश्मन बने हुए हैं। ये अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहाँ से आई? अरे आज कहाँ से दी? खुले रखवा गए थे इस यकीन के साथ कि हमारी अमानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही महफूज रहेगी। अब और तारीख दोनों इस वाक़े से हैरान है। दुश्मनान इस्लाम लाख दुश्मनी के बावजूद सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साजी कौम कहते और मानते भी थे। दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब। सानी तो बड़ी चीज है साया भी ना मिला, सानी तो बड़ी चीज है साया भी ना मिला। सामईन इकराम, आज हर तरफ शोर है, मुसलमान तबाह किए जा रहे हैं। जिस तरफ नजर डालो मुसलमानों को कमजोर करने की साजिशें हो रही है। वो मुसलमान जिसने दुनिया के अक्सर हिस्से पर हुक्मरानी की थी, वो मुसलमान जिसने दरियात समुद्र पर हुकूमत की, वो मुसलमान जिसके हुक्म की ताबेदारी जंगलों के बेज़ुबान जानवरों ने की, फलक पर चमकने वाले सितारों और सैयारों ने की, जमीन पर चलने वाली हवाओं ने की। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो सच्चे मोमिन थे। आज हमारे अंदर वो ईमान बाकी नहीं रहा जिसकी तापीश से बड़ी बड़ी चट्टानें भी रेज़ा रेज़ा हो जाया करती थी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा पर चादर तानने वाला, हम भूल गए कि नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है। हमने इबादतों को रियाकारी का जरिया बना लिया। सूदखोरी और हरामखोरी ने हमें बुज़दिल बना दिया। झूठ और गिबत ने हमें बेज़मीर कर दिया। हमारी नमाजों में खुशू नहीं और न हमारी दुआओं में वो असर बाकी है। आज हमारे अंदर वो अखलाक बाकी नहीं रहा। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही थी जिसने रहज़न को रहबर, जालिम को आदिल, खाइन को अमीन और जाहिल को आरिफ बनाया। गोया इंसान को इंसान बनाया। खुदा की रज़ामंदी और आखिरत। मोमिन महविश बिलाल अहमद, मोमिन महविश बिलाल अहमद कुर्सी पे आके बैठ जाए। जय साहबान नोट करें। सीरियल नंबर 43 अंसारी मोहम्मद फराज मोहम्मद सईद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिल को जिक्र हबीबे खुदा चाहिए, जिंदा रहने को जैसे हवा चाहिए। अब मुझे आईना की जरूरत नहीं, अब से खैरुल उम्म की दिया चाहिए। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान और सामीन बातमकीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी जिंदगी। अरब का तपता हुआ सहरा है, सूरज पूरी आबताब से चमक रहा है। रेत के दमकते हुए ज़र्रे देखती हुई अंगारों का मंजर पेश कर रहे हैं। मगर दूर एक अच्छी सिटीले के पास एक शख्स 3 दिन से खड़ा है। वो किसी के इंतजार में है, किसी ऐसे के इंतजार में जो उसे कह कर गया है कि भी लौट कर आ जाएगा। 3 दिन गुजर गए, वो अभी तक नहीं आया। आज अचानक वो शख्स दोबारा उधर से गुजरता है और अपने वादे के इंतजार में उस शख्स को वहीं खड़े देखकर आंखें हैरत से इंतजाम से झुका लेता है। लेकिन मुतरी शख्स की जबान से सिर्फ यही अल्फाज अदा होते हैं कि ऐ शख्स, तूने मुझे नाहक तकलीफ दी। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक इफ़ाए अहद नादिर व बेमिसाल। हज़रात, तसव्वुर कीजिए उस माशरे का जिसका चमन इंसान में इंसानियत का फूल नहीं खिलता था, जहाँ आदमी तो थे उससे निकला हुआ इंसान नहीं था। कौन था माशरे जालिम की शब तारीक माह कामिल, ये वो खुर्शीद ताबा है
मुश्किलाना नजरियात के खिलाफ नारे इhtijaj बुलंद किया और सीरत पाक का लफ्तरी नमूना पेश किया। मगर अफसोस आज हम सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर दुनिया भर में गली और सो रहे हैं। हमने उस रचना की तालीमात को फरामोश कर दिया और यही से हालांकि सर्द होतों का सफर शुरू होता है, पैरधुनात की सच रैलों से खेलने वाले घोड़े लागर पड़ने लगते हैं। मगरिब की वादियां, यूरोप के कलीसिया और अफ्रीका के सहरा में गूंजने वाली जाने का जोश कमजोर होने लगता है और अबाबिलों से खाली आसमान कब्रिस्तान की तरह ईमान से खाली दिलों को मुकद्दर बन जाते हैं। हज़रात गिरामी, उठिए, क्या आप हम बहुत सोच के खड़े हो जाइए कि वक्त कयाम है, दहर की ज्वाला तुम्हारी जस्तखीज की मुंतज़िर है और गायब से आवाज आ रही है, बेखतर तोड़े आहन के न घेरे हैं, तेरी यलगार ने दरिया के रुख फेरे हैं, कि मोहम्मद से वफातों में तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कलम तेरे हैं, वो माने इल्लल्लाह बला खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन कुनूत सही रहमत है, हाथ उठाओ। मोमिन कुनूत, हाथ उठाओ। बोल हाँ हूँ। जय साहिबान नोट करें, सीरियल नंबर 44, मोमिन महविश बिलाल अहमद। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला। हाज़रीन मजलिस, जज साहिबान और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है लड़की की विलादत